Hello and welcome to Z Media, and we are here to discuss T20 World Cup, which has started, and we are just 3 days away from biggest clash, biggest rivalry in cricket, India versus Pakistan. But before the match, there are some reports coming in, like rain may play a spoil sport for the India versus Pakistan match. So we have our correspondent joining us live from Melbourne. क्या मौसम है, क्या डिटेल है? Preeti is joining us from Melbourne. So Preeti, over to you. How's the weather in Melbourne currently? Karan, if you can see my background, I think this green backdrop would be a sight to behold. This is something that every Indian would want to see, even on 23rd of October when we take on Pakistan at this very place, Melbourne. MCG is just about 100 meters away from me. And I'll tell you, it's a beautiful weather today. They call it glorious weather with lots of sunshine and, slight bit of wind. If you're sitting in shade, you'll feel a little cold. If you go in the sun, you'll feel a little hot. So it's typical Melbourne weather. I've been lucky that I haven't seen any rain today, but I have to warn all the viewers right now that there are 30 to 50% chances of rain on Sunday, which is the match day for India and Pakistan. Now, what does a 50% chance of rain mean when you talk about weather forecast in Melbourne? It means that it may rain for a couple of hours. They have not suggested the exact time, whether it will clash with the match time or not. Even if it rains, let's say, at the during the match time or before that, the drainage system in MCG is fantastic. They say that they drain out the entire ground in a heartbeat. आपको पता भी नहीं चलता और पानी गायब हो जाता है from the outfield and from the the entire ground. So it's not going to be a hurdle, even if it rains and it stops. It's not going to be a hurdle because the ground staff is so is so good at draining the entire thing out. The system is fantastic, so the fans don't need to worry on that ground. Uh, it may so happen that you will have a bit of a curtailed match wherein you do end up losing a few overs, but a washout, I really don't think the washout is a possibility. Weather gods are going to have mercy on us. Weather gods are going to have mercy on thousands of cricket fans who are going to be watching this match live here from their TV screens in both India and Pakistan and even across the world. And I'll tell you what, there are fans who have particularly taken tickets worth lakhs of rupees from their respective Yes. country, whether it's Pakistan or India, and have come all the way to see this match. Think about them, and let's be a little, let's not be cruel. I would just say that. Yeah. Yeah, so Amrit is also joining us. So yeah, there is some positive news coming from Melbourne Cricket Ground. Priti is saying that there are chances, 30% chances of rain, but yes, there are chances कि मैच हो और मैच अगर थोड़ा सा भी कर्टेल होता है तो बस ये है कि मैच होने के चांसेस हैं. स्मिता आपके पास आएंगे. अगर बारिश हो जाती है तो कितना चांसेस है, क्या बेनिफिट होगा इंडिया और पाकिस्तान को, और पॉइंट्स कैसे डिवाइड होंगे, अगर आप थोड़ा सा बता पाए हमारे व्यूअर्स को. करण बारिश हो गई तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा. हालांकि जैसे प्रीति ने कहा तो मैं अग्री करती हूँ कि मैच होगा, क्योंकि T20 के रूल्स के हिसाब से देखें तो 5 ओवर कराने जरूरी है और 50% तक ही बारिश होने के चांसेस है. उन्होंने बताया जैसा कि मेलबर्न का ड्रेनेज सिस्टम बहुत शानदार है और ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो हमेशा एक प्लान भी, ICC हो, BCCI हो या कोई और बोर्ड हो, वो हमेशा एक प्लान भी तैयार करके रखते हैं. तो एक थोड़ी बहुत टेंशन की बात ये हो सकती है हम 20 ओवर का मैच ना देखें, वो 14 ओवर या 8 ओवर या 12 ओवर का हो सकता है. लेकिन मैं जैसे देख रही आज सनी डे है तो ऐसा ही सनी डे और क्योंकि बारिश होनी है वो पहले या बाद में हो. अगर बारिश हुई और बारिश की वजह से मैच पूरी तरह से कैंसिल हो गया तो एक ही ऑप्शन है कि क्योंकि कोई रिजर्व डे रखा नहीं गया है ग्रुप लीग के मुकाबलों के लिए, तो फिर पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं है आगे के टूर्नामेंट में जाने के लिए. सबसे अच्छा हमेशा यही होता है कि आप जीत के साथ आपकी शुरुआत हो और आप 2 पॉइंट्स लेकर के एक अच्छे मनोबल के साथ, एक पॉजिटिव नोट के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़े. लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, मैं मान के चल रही हूँ. बिल्कुल मैच होगा और हम एकदम जीतेंगे और पिछले वर्ल्ड कप का बदला भी लेना है. और अब तो खैर उस दुख में एशिया कप के हार का दुख भी ऐड हो गया है, तो दो दुखों का बदला लेना है. मैच होगा और बड़े अंतर से हम जीतेंगे. जी बिल्कुल. तो प्रीति, आपने जब एशिया कवर किया था और तो बहुत जबरदस्त माहौल रहता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो अभी से बिल्डअप शुरू हो गया है क्या? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में फैंस हैं, वहां पे इंडिया प्रैक्टिस कर रहा है या पाकिस्तान अभी कुछ ऐसे नजारे हैं जो हमारे साथ शेयर कर पाए? नहीं, आज प्रैक्टिस नहीं है दोनों टीम्स की. ऑल्सो बिकॉज कल ही इंडिया का वो प्रैक्टिस मैच रखा गया था ब्रिस्बेन में, तो आज का दिन ट्रैवल के लिए है.
कल से मेरे ख्याल से नेट प्रैक्टिस शुरू होगी। जैसे शेड्यूल आएगा मैं आपको जरूर उसके लिए एक सेपरेट रिपोर्ट दूंगी, लेकिन अभी शेड्यूल रिलीज नहीं हुआ है कि नेट प्रैक्टिस कौन सी टीम कितने बजे करेगी। आपने बात की कि एशिया कप में जो हमने देखा कि कैसे हाइप अप होना शुरू हो जाता है, मैच से Yes. पहले ही फैंस लगातार दिखते हैं स्टेडियम के सामने। आज भी मैं गई थी, अपना एक्रेडिटेशन कार्ड कलेक्ट करने के लिए गई थी मैं स्टेडियम के बाहर। एंड आई टेल यू व्हाट कि फैंस आ रहे हैं, और इस मैच की हाइप उसी दिन से बिल्डअप हो गई थी जिस दिन से ये मैच अनाउंस किया था। फिर उस दिन ये परवान चढ़ गई जब इस मैच के टिकट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल हुए और हाथों हाथ 1 घंटे के अंदर अंदर बिक गए। तो जो लोग आपको ये बोलते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान राइवलरी इज अ थिंग ऑफ पास्ट, अब इसमें वो बात नहीं रही, आई एम सॉरी। आप जरा मैदान पर आके देखिए, आपको वो बात क्या उसकी भी 4 गुना ज्यादा लेवल नजर आ जाएगा। So I think India-Pakistan rivalry is unprecedented, and also I'll tell you very interestingly, I met a man from England. He had come here with his wife. Instead of looking for a ticket for his team first up, he wanted an India-Pakistan ticket. But unfortunately वो सारा sold out हो गया था, उनको मिला नहीं। और मैंने उनसे इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा कि आप एक्चुअली सीरियसली आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते थे? कहते हैं there is no such rivalry. I mean, it's unmatchable. The atmosphere that you see in the ground, you want to soak it in as a cricket fan. And that's the same thing, Karan, जो मुझे यहाँ पर इस वेदर में लेके आई है। यू मुझे भी यू इंडिया यू आर सो पाकिस्तान लकी। मैच देखना ये है। पर्क्स है, एक जर्नलिस्ट होने के एक पर्क्स है, आप मैच जरूर देख पाएंगे Yes. और हमारे साथ भी शेयर करेंगे। कैसा माहौल रहता है प्रीति अगर आप मैच जब प्रेस बॉक्स में आप बैठे होते हो और जब क्राउड इतना हो, इंडिया पाकिस्तान का इतना हाई वोल्टेज ड्रामा आता है, तो अंदर का इन्वायरमेंट क्या होता है? क्योंकि अभी तक हमें वो नहीं मिला है, हमारे व्यूअर्स को जो यहाँ बैठे हो मेलबोर्न क्रिकेट में नहीं देख पाएंगे, वो हमारे साथ जरूर जुड़े। हाँ, आपके वो जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आई समझ पाए कि विश मैं क्या माहौल आपके रहता है। साथ प्रेस बॉक्स की तस्वीरें शेयर कर पाऊं, लेकिन वो अलाउ नहीं होता है क्योंकि मैदान में सिर्फ जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो अपने कैमरा यूज कर सकते हैं। बट आई टेल यू व्हाट, इंडिया पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वेरी मच लाइक इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो आप देखते हैं ऑफ फील्ड एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं, थोड़े से ताने भी देते हैं, और मतलब खूब हंसी मजाक चलता है, बड़ा मजा आता है। और क्या होता है कि प्रेस बॉक्स में आपको बोला जाता है कि अटमोस्ट प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। प्लीज, अगर आपकी टीम छक्के चौके मार रही है तो आप उठ के ताली ना बजाएं, सीटियां ना मारने लगे, बिकॉज यू नो इट्स अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। बट इट्स अनकंट्रोलेबल। जब पिछली बार मैं वहां थी, जो एशिया कप का मुकाबला मैं कवर करके आई, मैं जिता के आई थी, ठीक है, तो वो हम जीते थे इंडिया के लोग। और जब इंडिया के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इंडिया के बॉलर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इवन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो गेम को समझते हैं, परखते हैं, अच्छी चीजों की सराहना करते हैं, वो तारीफ कर रहे थे। एंड वाइस वर्सा, इंडियंस भी तारीफ कर रहे थे। जब नसीम शाह को आपने आग उगलते देखा, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। 19 साल का लड़का इतना अच्छा बॉल को स्विंग करा रहा है, इट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग। सेम चीज जाती है जब हमारे बैट्समैन अच्छा करते हैं, जब हमारे बॉलर्स अच्छा करते हैं, जब ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तानीज ने देखा कि हार्दिक पांड्या इस एशिया कप में हमारे की प्लेयर बन के उभरे, किस तरह से वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। एंड इट्स वर्थ सोकिंग इट इन। आई रियली विश कि आप सबको मेरी तरह ये अपॉर्चुनिटी मिले, बिकॉज इट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। द सेम वे करण, अब सेम लॉजिक आप लगाइए उन क्रिकेटर्स के लिए, ये कितने बड़े ऑनर की बात होती है जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने बड़े मुकाबले में। और उनके लिए ना सिर्फ ऑनर की बात होती है, उनके लिए भी एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम होता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज नहीं होती है। और जिस हिसाब से पिछले 2-3 दिनों से आतिशबाजी चल रही है पीसीबी और बीसीसीआई के बीच, ये लग भी नहीं रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही कोई बायलैटरल सीरीज होगी। तो हमारे पास एकमात्र मौका होता है व्हेन वी गेट टू मीट देम इन इंटरनेशनल ऑन एनकाउंटर्स इन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स लाइक द वर्ल्ड कप और द एशिया कप। And that's when we want to all soak in the atmosphere. The players also attach high premium. और ये जो सब दिखावा करते हैं ना कि अरे हम तो दोस्त हैं, हमारे लिए कोई और मुकाबले जैसा है ये, I will maintain this is just दिखावा. The pressure is so high that there is no comparison whatsoever. और चाहे रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में माने ना माने, बाबर आजम कहे कोहली तो मेरे बड़े भाई की तरह है, हाँ जी बहुत है, सीख लो उनसे, लेकिन उनके सामने डिलीवर मत करो, कभी तो फेल हो जाओ यार बाबर आजम। अच्छा, आपने एक बहुत अच्छी खबर दी है, ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कि हाँ, आज मौसम बहुत साफ है और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बढ़िया है, तो मैच होने के चांसेस हैं। बट एक खबर जो हमने कल देखी, शाहीन अफरीदी जो वापसी कर रहे हैं, क्या इंडिया के लिए ये खतरा हो सकते हैं? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन टू यू प्रीति, क्योंकि अब जो निगाहें हैं वो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में राइवलरी पे हैं कि कौन किसकी विकेट लेगा और कौन किसको छक्के मारेगा। तो शाहीन अफरीदी का वापसी आना इंडिया के लिए खतरा है या इंडिया के बैट्समैन कैपेबल हैं ये प्रेशर झेलने के लिए?
करण, आई एम सरप्राइज कि लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि शाहिन शाह आफरीदी का वापस आना इंडिया के लिए खतरा है। वो तो नहीं थे एशिया कप में, आपको नसीम जी शाह ने धो डाला, तो उनके पास पेस बैटरी की कमी नहीं है। ठीक है, जी नाउ जी व्हाट इज माय कंसर्न इज, एंड आई डिस्कस्ड इट with a few other cricketers. You are also going to see those interviews on Z Media very soon, which we have prepared in the lead up to our coverage of India Pakistan big clash. सबका ये मानना है कि अगर आप शाहिन शाह आफरीदी को सरवाइव करने की सोचोगे तो फिर तो वो आपको ले डूबेगा। You have to be on the attack mode. The way he is trying to intimidate you, you have to counter attack, or better still, you have to attack him from word go. If you allow Shaheen Shah Afridi to intimidate you with his swing and his pace, then you are done. You're finished at that time. Don't look to survive, look to score, and look to score big, and look to hit him hard. एंड जो ऑस्ट्रेलिया के मैदान है उनमें बाउंड्री छोटी नहीं होती है, लंबी बाउंड्री होती है, तो छक्के चौके यस निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, चाहे आप रोहित शर्मा हो, चाहे आप बाबर आजम हो, रिजवान हो, या फिर विराट कोहली हो, सूर्य कुमार यादव हो, किसी भी बड़े बल्लेबाज को आप ले लीजिए, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अपनी जो स्किल्स हैं उनका अल्टीमेट टेस्ट है। एक तो बड़ा मंच है क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, दूसरा बड़ी राइवलरी है, आप पाकिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरे हैं, तीसरा आपकी साख, आपकी जो पहचान है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, उस पे खतरा आ गया है। पिछली बार तक 100% रिकॉर्ड था, अब उस रिकॉर्ड में कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्लेमिश आ गया है, उस ब्लेमिश को या तो अभी मिटा दो या फिर वो दाग बढ़ता जाएगा। So you have to consider all these factors and then only you consider ये शाहिन शाह अफरीदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेरी कंट्री का फ्लैग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ से अगर मैंने जीत का मोमेंटम लिया तो वर्ल्ड कप में आगे की राह में आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ रहे हो। लेकिन आपने भी ये देखा है करण कि जब आप लूज करते हैं फिर मोमेंटम हिल जाता है। पिछली बार यस एशिया कप में क्या हुआ था, हमने पाकिस्तान के खिलाफ वो दूसरा मैच हारा एंड देन वी लॉस्ट अगेंस्ट श्रीलंका आल्सो। सो यू लूज द मोमेंटम, you somewhere your confidence is dented, and I'm definitely 100% sure that this time at least Rohit Sharma cannot afford to lose those catches. We cannot afford to have those very very expensive last 2 overs. We cannot afford our star-studded batting lineup to fail. So it's not just about Shaheen Shah Afridi, it's about the momentous occasion that you are going to face. And you are kidding no one, you cannot kid no one. It is a huge, huge occasion. You cannot have 2 back-to-back losses in ICC tournaments as far as Team India is concerned. I'm building the pressure. या यू आर बिल्डिंग द प्रेशर, बट हाँ, बट ये एक होप है कि हमको मैच देखने को जरूर मिलेगा। और जैसे कि प्रीति जो लाइव है फ्रॉम मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड से देखें, अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे उनकी ये तरफ फोकस देखिए हटाएंगे धूप, तो हाँ देखिए ग्राउंड भी ये दिखेगा। देखिए आप देखिए ये धूप देख रहे हो आप, इसके इस सड़क से सीधा जाके यहाँ से MCG है, तो ये धूप बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। एटलीस्ट मेलबर्न में तो आज बहुत ही अच्छा सुंदर खूबसूरत नजारा है। ये शहर इतना खूबसूरत है, यहाँ आके आई थिंक वैसे ही सारे क्रिकेटर्स का दिल भी बहुत खुश हो जाता है। हम जर्नलिस्ट का तो डेफिनेटली हो ही जाता है, क्योंकि दुबई की गर्मी से अब हम मेलबर्न के कूल 15 to 20 डिग्री के जो टेम्परेचर है उसमें है। ओवरऑल भी आई थिंक दिस ऑल्सो ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन यू। मन खुश है यस तो परफॉर्मेंस भी बेहतरीन निकलता है। एंड जस्ट डोंट कीप ऑन रिपीटिंग द जिंक्स। बारिश नहीं होने वाली है और अगर होगी तो भी मैच होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मैच जरूर होना चाहिए। So yeah, we are hoping for the best. So some positive news coming from Melbourne Cricket Ground कि मौसम सही है, मैचेस होने के पूरे संभावना है, मैच होने का इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है 23 अक्टूबर को। तो जैसे कि हम प्रीति के साथ बने रहेंगे, हम अपडेट आपको देते रहेंगे जो भी हमारे पास अपडेट आएगा। सो शी इज देयर लाइव from for us from Melbourne Cricket Ground. So thank you Preeti, thank you for joining us today. I'll continue this conversation with Smita and Amrit bhai who are joining us as an expert. Thank you Preeti. Right, I'll see you guys again. Bye bye. या थैंक यू। तो स्मिता, जैसे कि आपने सुना प्रीति को, उन्होंने कहा कि मैच होने की संभावना, तो कितना मतलब ये व्यूअर्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि हर तरफ यही सर्च हो रहा है अगर हम देखा जाए कि मैच होगा या नहीं। नहीं मैच बिल्कुल होगा। मैं तो बार बार यही कहूंगी कि मैच होगा। एक्चुअली क्या है कि जब आईसीसी इस तरह के कोई बड़े टूर्नामेंट कराती है, आईसीसी नहीं बायलैटरल सीरीज भी होते हैं, तो हमेशा बोर्ड्स और टीम्स एक मैनेजमेंट जो कर रही होती है उस टूर्नामेंट का आयोजन, वो एक प्लान भी लेकर चलती है। मेलबर्न में बारिश कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज नहीं है या ऐसी चीज नहीं है कि बहुत कम कभी कभार होती है दुबई की तरफ। तो वहाँ के ग्राउंड्स इस तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतरीन है। और अगर मैच से कुछ देर पहले भी बारिश हुई तो थोड़ा सा मैच को डिले करके
और ग्राउंड को सोक करके मैच को कराया जाएगा। तो अगर बारिश 50% तक के चांसेस दिखाए गए, जिसमें पूरी उम्मीद है कि 20-20 ओवर का खेल होगा, लेकिन अगर बारिश ज्यादा हुई, कुछ वैसी स्थिति बनी, तो भी ओवर शॉर्ट किए जा सकते हैं, बट गेम तो होगा। हम ये मानकर चलिए, इतने बड़े टूर्नामेंट में गेम ना हो और पॉइंट्स बढ़ जाएं, इस तरह की स्थिति होना खुद आईसीसी के लिए भी एक अच्छी, उनकी इमेज के लिए, उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से कोई अच्छी स्थिति नहीं है। तो मैच बिल्कुल होगा और एकदम हम ही जीतेंगे। जी, तो मैच होगा, हम बिल्कुल यही जीतेगी। स्मिता का ने जो हमें बात बताई हमारे व्यूअर्स को, और प्रीति ने भी बताया कि आज का कैसा मौसम था, धूप थी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, और हम होप करेंगे कि उनके साथ बने रहे। थैंक यू स्मिता। मैं ये कन्वर्सेशन आगे रखूंगा अमृत भाई के साथ, हम डिस्कस करेंगे कि अगर पॉइंट्स बढ़ते हैं तो किसके लिए बेनिफिट होगा, या दूसरी टीम्स के लिए कौन मतलब इसका ले पाएगा। तो अमृत भाई, अगर बारिश हो जाती है, अभी तो जैसे कि हमने रिपोर्टिंग देखी, प्रीति ने बताया कि बारिश नहीं है, धूप है, बहुत अच्छा मौसम है, बट अगर फिलहाल अगर एक चांस मान लो, जिस तरीके की स्पेकुलेशन और रिपोर्ट्स आर कमिंग इन कि रेन मे प्ले स्पॉइल स्पोर्ट विद ड्यूरिंग द इंडिया पाकिस्तान मैच, अगर वो होती है और पॉइंट्स बढ़ते हैं, तो किसको फायदा, किसको नुकसान, अगर आप ये एज एन एक्सपर्ट हमें बता सकते। जी, सबसे पहले तो जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं जितने भी, वहाँ यूजुअली एक रिजर्व डे होता है, यानी कि जो हमारे आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप के जो सेमीफाइनल और जो फाइनल है, उसके लिए एक रिजर्व डे रखा गया है कि अगर वहाँ बारिश होती है तो अगर उस दिन मैच नहीं हो पाता है तो वो मैच अगले दिन खेला जा सकता है। लेकिन सुपर 12 स्टेज जो है, वहाँ इतने सारे मैचेस हैं, ग्रुप स्टेज है, 4 टीम्स आप ऑलरेडी एक ग्रुप में हैं, इसके बाद 2 टीम्स और ज्वाइन करेंगी, तो इस वजह से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं सुपर 12 में भी रिजर्व डे देना। तो इस वजह से शायद जो है वहां रिजर्व डे नहीं दिया गया है। रिजर्व डे नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स बढ़ जाएंगे अगर बारिश होती है, मैच वॉश आउट हो जाता है। तो अगर पॉइंट्स बढ़ते हैं तो इसका इंपैक्ट कैसे होगा? सबसे पहले इंपैक्ट ये होगा कि आप देखिए, जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है, ग्रुप बी में 2 टीम्स ज्वाइन करेंगी। एक तो जो क्वालिफायर्स अभी चल रहे हैं, कल ग्रुप बी राउंड 1 के क्वालिफायर्स होंगे, उनमें से 2 टीमें क्वालिफाई करके आएंगी। वो कौन सी 2 टीमें आती हैं, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। तो कल अगर वेस्ट इंडीज अपना मैच जीतती है और अगर वेस्ट इंडीज क्वालिफाई करके आती है, तो फिर ये ग्रुप ऑफ डेथ बनता है, क्योंकि आपके पास वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, ये सारी टीमें एक ग्रुप में आ जाती हैं। तो तब इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये देखें, मान लीजिए साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस जीत जाती है या वेस्ट इंडीज अपने सारे मैचेस जीत जाती है, तो वहां इंडिया अपने सारे मैचेस जीतने के बाद भी वो वेस्ट इंडीज की पॉइंट्स में बराबरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 1 पॉइंट कम रहेगा अगर कल का मैच वॉश आउट हो जाता है, अगर 23 तारीख का मैच वॉश आउट हो जाता है। तो ये दोनों ही इंडिया पाकिस्तान के लिए जो है डिसएडवांटेज रहेगा। सभी फैंस ये चीज की होप करेंगे कि ऑब्वियसली, जैसे हमने रिपोर्टिंग भी बताई है, कि उम्मीद करेंगे कि जो वेदर है वो ऐसा ही बना रहे। लेकिन जो साइंस हैं, जो अर्ली साइंस हैं, वो साइंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों का ही एक वार्म अप मैच जो है वो बारिश के कारण कल नहीं हो पाया था। पाकिस्तान तो फिर भी एक इनिंग खेली थी, पूरे 20 ओवर डाले गए थे पाकिस्तान के बॉलर्स के। इंडिया का तो मैच का टॉस के पहले ही इतनी बारिश हो गई थी कि जो है वो मैच स्टार्ट नहीं हो पाया। तो इस वजह से सेमी ग्राउंड में मैच था वो शायद। जी 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 बिल्कुल, गाबा में मैच था, और पाकिस्तान का जो पहली इनिंग्स कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद सेकंड इनिंग स्टार्ट जरूर हुई थी, रिजवान और बाबर ने आके बैटिंग की थी, केवल 19 रन बना पाए थे। उसके बाद बारिश इतनी लगातार हुई, उसके बाद 2-2.5 घंटे लगातार बारिश हुई, जिसके बाद मैच को जो है वो अबैंडन किया गया। तो इस वजह से अब अगर कल का मैच, जो 23 तारीख का जो मैच है, अगर एक बार फिर से उस पे भी ऐसे ही काले बादल आते हैं, तो फिर वो दोनों इंडिया पाकिस्तान के लिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल की स्थिति होगी, अगर वहां पे पॉइंट्स बटे जाते हैं। तो बिल्कुल मुश्किल की स्थिति होगी, और बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा। अगर आप एक पॉइंट्स भी ले लेते हैं, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आगे टूर्नामेंट। यू हैव टू विन ऑल द गेम्स, क्योंकि अगर जो दूसरी टीम्स हैं वो अपने सारे मैचेस जीत गए, उनको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, बट यू हैव ओनली 1 पॉइंट। तो बहुत सारी चीजें, फैक्टर आ जाते हैं। अगर आपका एक मैच वॉश आउट होता है तो दूसरी टीम पे भी प्रेशर आता है। फिर नेट रन रेट भी है जो इस में आ सकती है, एक बहुत बड़ा प्ले रोल कर सकती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम बने हुए हैं डिस्कशन पे। तो अमृत भाई, जाने से पहले इंडिया पाकिस्तान का जो ये बिल्डअप हो रहा है, और बारिश ने तो और मतलब लोगों का मूड ऐसा कर दिया कि अगर बारिश हो गई तो क्या, क्योंकि उस दिन छोटी दिवाली है इंडिया में देखा जाए तो, और संडे भी है, छुट्टी भी है, और संडे वाला दिन है, सब बैठे होंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ इस बार, जो पिछला हमने देखा कि इंडिया हार गई, जो वर्ल्ड कप जिंक्स था वो ब्रेक हो, अब इंडिया का कॉन्फिडेंस कैसा होगा पाकिस्तान के सामने? क्योंकि अब उनके पास एक तरीके से शाहीन अफरीदी जैसे एशिया कप में नहीं उन्होंने बताया, बट फिर भी पाकिस्तान ने हमें हराया एशिया कप में। जी, फाइनल अब तक गए थे। कैसा कॉन्फिडेंस रहेगा? हाँ जी, अब कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा इंडिया का
एज अ वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, और एज अ फेवरेट्स भी वही हैं अगर देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप में वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। तो क्या कहेंगे अमित भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। इंडिया कोई भी टूर्नामेंट, जब आईसीसी टूर्नामेंट खेलती है तो डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स रहती है। इंडिया का रिकॉर्ड रहा है 2011 के बाद से लेकर के जितने भी हमने, जो 11 में वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स रहे, कम से कम सेमीफाइनल तक तो पहुंचे हैं, एक्सेप्ट पिछला साल, जो पिछला यूएई में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था। तो रिकॉर्ड अगर आप देखें तो डेफिनेटली इंडिया को फेवर करता है, लेकिन ऑन दैट डे टीम कैसा परफॉर्म करती है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मुझे जहां तक लगता है, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर्स, कोई भी हमारी टीम में प्लेयर ये नहीं सोच रहा होगा कि हमने पाकिस्तान को 6 बार में से 5 बार हराया है T20 वर्ल्ड कप में। कोई भी प्लेयर ये चीज नहीं सोचता है। ऑन दैट गिवन डे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी टीम कैसा परफॉर्म कर रही है। ब्लोज दोनों ही टीम के लिए थोड़े बहुत हैं, ऑब्वियसली इंडिया के लिए थोड़े से ज्यादा हैं, क्योंकि वहां शाहीन ने वापसी कर ली और बुमराह जो है वो रूल आउट हो चुके हैं, हमारे पास जडेजा नहीं है। तो ये थोड़ा जरूर एक फैक्टर होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फिर एक दूसरे प्लेयर के लिए चांस बन जाता है। वो चांस बन जाता है अक्षर पटेल के लिए, वो चांस बन जाता है अर्शदीप के लिए, शामी के लिए। और जिस तरीके का एक ओवर वो शामी ने डाला था, मैं जरूर मान रहा हूँ कि वो एक ही ओवर मिला, लेकिन उससे हाइप बहुत बढ़ गया। ऐसी ही चीजों से आपको कॉन्फिडेंस बनता है। वो मोमेंटम की जो हम बात कर रहे थे, जो प्रीति मैम भी बता रहे थे कि मोमेंटम कभी कभी बिगड़ जाता है, मोमेंटम बनता भी ऐसे ही है कि आप 4 बॉल में 4 विकेट लेकर के और वो मोमेंटम कैरी करेंगे अगले मैच में। अब देखना ये होगा कि टीम्स उस गिवन डे पे कैसा परफॉर्म करते हैं। और रही बात अगर कॉन्फिडेंस की, तो मुझे लगता है बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से टीम इंडिया आएगी, क्योंकि पिछली जो सीरीज रही हैं उनमें एशिया कप अगर आप हटा दें, एशिया कप के अलावा इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। आप होम पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज हारे थे आईपीएल के जस्ट बाद, उसके बाद उन्होंने आयरलैंड को हराया, आपने जिम्बाब्वे को हराया, उसके बाद आपने अभी आते आते साउथ अफ्रीका को भी हराया, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने होम पे। तो ये सारे इतने मैचेस प्रिपरेशन के जो रखे उन्होंने, वो इसी वजह से रखे ताकि प्लेयर्स जो हैं वो एक अच्छे मूड में आ जाएं, उनको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हर प्लेयर को अपना रोल पता चल जाए। और रोहित शर्मा ने भी वाली चीज बोली थी, ही ऑलरेडी नोज हिज प्लेइंग 11 पाकिस्तान वाले मैच में क्या होने वाली है। तो वहां कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। एवरी प्लेयर नोज हिज रोल के उस दिन उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा। इट्स जस्ट दैट यू वांट टू डिलीवर ऑन दैट ओकेजन। और मुझे लगता है कि इंडिया का काफी ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के। शाहीन शाह अफरीदी वापसी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब इंजरी के बाद आप वापसी करते हैं, तो हमने देखा बुमराह के साथ भी वो चीज जो हुई कि एक रिस्क जरूर रहता है। तो कहीं ना कहीं शाहीन को भी वो फ्रॉम द गेट गो, मुझे लगता है बाबर यूज जरूर करेंगे, लेकिन एक रिस्क जरूर रहता है। तो आप वहां पे वो एक एडवांटेज मिल सकता है इंडिया को। और उसके अलावा हम सभी जानते हैं पाकिस्तान एक बॉलिंग हैवी साइड है, तो अगर इंडिया बैटिंग हैवी साइड है और अगर हम उनकी बॉलिंग को काउंटर कर लेते हैं, और हमारे पास काफी अच्छे बैट्समैन हैं, सभी बैट्समैन लय में, पहले केएल राहुल की बैटिंग के ऊपर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने भी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, पिछले मैच में 50 मार के आए हैं वार्म अप गेम में। तो कोई भी एक ऐसा बैट्समैन नहीं जिनको आप पिन पॉइंट करके बोल सके कि इनका फॉर्म खराब चल रहा है। सभी बैट्समैन जो है वो अच्छी लय में लग रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि डेफिनेटली सभी प्लेयर्स ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस एंड द टीम शुड विन। या तो अब भी यही सब यही प्रे करेंगे इंडियन फैंस की बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला हो और इंडिया इस बार जीत के निकले वर्ल्ड कप और उठाए, क्योंकि रोहित शर्मा भी एज अ कैप्टन फर्स्ट लीड कर रहे हैं आईसीसी। ये उनका बिल्कुल। पहला एक ट्रॉफी का जो है ना कंपटीशन है, तो वो भी चाहेंगे कि वो जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो और वो जब एंड हो तो उन्हीं के हाथ में ट्रॉफी हो। तो थैंक यू अमृत भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम कंटिन्यू रखेंगे इस डिस्कशन को, जैसे जैसे कोई बिल्डअप आएगा we'll try to update you guys. We have our reporters live from Melbourne who will be giving you updates live from the stadiums. We have Kapil there, we have Preeti there, we have some other members are also joining us in Australia. So thank you Amrit bhai, thank you for joining us. Viewers, keep watching this Z Media for the live coverage for the T20 World Cup. Thank you Amrit bhai. Thank you.